8 members of a family, including 2 children, were killed in a fire triggered by an explosion at an electric vehicle charging point in Indore early on Wednesday, March 18th. The incident took place at a 3-story house in Brajeshwari Annex Colony between 3:30 am and 4:30 am. According to police, an electric car was being charged outside the house when an explosion occurred at the charging point. The fire that followed quickly spread from the vehicle to the building. Cooking gas cylinders stored inside the house also exploded, further intensifying the blaze. 8 members of a family, including 2 children, were killed in a fire triggered by an explosion at an electric vehicle charging point in Indore early on Wednesday, March 18th. The incident took place at a 3-story house in Brajeshwari Annex Colony between 3:30 am and 4:30 am. According to police, an electric car was being charged outside the house when an explosion occurred at the charging point. The fire that followed quickly spread from the vehicle to the building. Cooking gas cylinders stored inside the house also exploded, further intensifying the blaze. Officials said the doors of the house were fitted with electronic locks, which made it difficult for rescue teams to enter quickly. 3 persons trapped inside the house were rescued during the fire. The bodies of 8 victims were later taken to a government hospital where post-mortem examinations are underway. The deceased include 2 children aged 6 and 12 along with 3 women. इसमें इलेक्ट्रिक लॉक्स थे, तो ये भी हो सकता है कि पावर क्योंकि कट हो गया होगा, तो उसके बाद वो लॉक्स कहीं हो गए थे, क्योंकि हमको चैनल गेट और दरवाजे भी तोड़ने पड़े जब हम अंदर घुसे। और स्मोक काफ़ी था, क्योंकि घरेलू परिवेश है तो बहुत सारी चीज़ें घर के उसमें रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उससे धुआं काफ़ी वो होता है, और कई बार धुआं एक जो है वो मेजर रीज़न बन जाता है, आदमी को जो अंदर रहते हैं इनकैपेसिटेट कर देता है, सफोकेट कर देता है। Following the incident, the Madhya Pradesh government has ordered a detailed investigation. Kailash Vijayvargiya, the state urban development and housing minister, visited the spot and described it as alarming, given that the fire broke out while an electric vehicle was being charged. He said a committee of experts will examine the incident to ensure such cases do not recur, and added that the government will also put in place a standard operating procedure for electric vehicle charging. जो किचन या बिजनेस के लिए होंगे यार बेसिकली, ठीक है, और तो उनका क्या ही काम है। और कुछ सिलेंडर्स तो भाई यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई फट भी गए हैं, फट चुके थे, उसके बाद ज्यादा इंटेंस हो गया था वहां पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डोर्स और लॉक उस घर में थे, जैसा कि इलेक्ट्रिक आजकल लोग आने लग गए हैं, ठीक है, घरों में। और पावर फेलियर तो भाई हो ही जाती है, इन्वर्टर सबका भाई, जिसकी वजह से 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है। ये चलो ये सब तो सही है भाई, ठीक है, मतलब सही तो क्या है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दे। पूरे देसी टोर कम की टीम से भाई मेरी भगवान से रिक्वेस्ट है। पर भाई इस टॉपिक पे ना बहुत बड़ी एक बहस छिड़ गई है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में, ईवीज पे, ठीक है। एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ईवी चार्जिंग रिस्क है भाई, ठीक है, क्यों हुआ ये देखते हैं। अब सवाल देखो ये है कि ईवी सेफ है या नहीं है, इसका तो चलो बाद में करते हैं, पर ईवी का फ्यूचर तो है, ठीक है। पर अभी इंडिया ना भाई उसमें पूरी तरीके से रेडी नहीं है, पूरे तरीके से लगा लो या भी आप लगा लो, बिल्कुल भी रेडी नहीं है, ठीक है। मेरा तो भाई ये मानना रहेगा कि इंडिया अभी भाई बिल्कुल भी ईवीज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि हर स्टेट की गवर्नमेंट पूरा जोर लगा देती है, सब्सिडी मिल जाएगी और ब्रांड्स ऐसी ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर देते हैं, महिंद्रा टाटा जैसी, ठीक है,
कि हाँ भाई अट्रैक्शन आ जाता है भाई इन गाड़ियों पे पहली नजर में, क्या चलिए तो बढ़िया है, कोस्ट सेविंग है, ये ले लेते भाई। ऐसी कोस्ट सेविंग का क्या करोगे जब तुम्हारी जान ही सेफ नहीं रहेगी, लाइफ सेफ नहीं रहेगी, फिर उस कोस्ट को बचा के तुम करोगे क्या? एक बात तो मुझे बताओ, ठीक है। कॉमन कोस्ट में आपको बताता हूँ भाई, देखो जब भी कोई आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में चार्जिंग करते हो ना, तो उसमें कितने रिस्क होते हैं। देखो इस केस में देखो सब सस्पेक्टेड शॉर्ट सर्किट हुआ है चार्जिंग पॉइंट में या केबल में, जो भी कहें वो तो भाई अभी पूरी जांच होगी, ठीक है। पुलिस भी पूरी जांच करेगी, ब्रांड भी पूरी जांच करेगा जिस ब्रांड की वो गाड़ी है, ठीक है। कॉमन कोशिश यार फॉल्टी चार्जर होगा मेरे हिसाब से, या पुअर इंस्टॉलेशन, ओवर चार्जिंग। भाई कई कई लोग ओवर चार्जिंग पे भी छोड़ देते हैं, पर आजकल की गाड़ियों में तो ऐसे चलो फीचर्स आते हैं कि चार्ज होते ही कट हो जाती है तुरंत चार्जिंग, ठीक है। या भाई सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होगा। बैटरी में थर्मल रनवे भी हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ गलत हो तो इंडिया में भाई पहले भी कुछ ऐसी ईवी फायर केसेस हुए, लेकिन ये सबसे भाई ट्रेजिक था, क्योंकि इसमें ना केवल गाड़ी का नुकसान हुआ बल्कि 8 लोगों को बर्बाद हो गए। 8 members of a family. प्रदेश के इंदौर से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। शहर के पौष इलाके ब्रजेश्वरी एनेक्स में मंगलवार तड़के एक भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा इतना भयावह था कि परिवार के सदस्य अपने ही घर में फंसकर रह गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बच पाया। जानकारी की माने तो ये घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई, जब अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। अचानक घर के निचले हिस्से में आग भड़क उठी और देखते ही देखते उसने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग मकान के सामने वाले हिस्से से शुरू हुई, जहां एक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी। बताया जा रहा है ये मकान ब्रजेश्वरी एनेक्स के निवासी मनोज पुगलिया का था। घटना के वक्त घर की तल मंजिल पर एक इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो रही थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। क्योंकि चार्जिंग के दौरान बिजली का लोड अधिक होता है, इसलिए आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया। आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी और फिर धीरे धीरे पूरे घर में धुआं और लपटें फैलने लगी। घर के ज्यादातर सदस्य उस समय ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। जैसे ही आग और धुआं ऊपर उठा, परिवार के लोग घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन नीचे जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद था, जिस कारण वे आग की चपेट में आ गए। धुएं की घुटन और तेज लपटों के कारण वे नीचे नहीं आ सके और वहीं फंस गए। स्थिति इतनी भयावह थी कि किसी को भी अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिला। इसी बीच घर में रखा गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गया। कुछ ही देर में सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आग और तेजी से भड़क गई। इस विस्फोट ने बचाव की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया और पूरे घर को आग की लपटों में झोंक दिया। आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज सुनी, तुरंत बाहर निकले तो देखा मकान से धुआं और आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में काफी समय लग गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में मनोज पुगलिया समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारण की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की मुख्य वजह माना जा रहा है, लेकिन अधिकारी अन्य संभावित कारणों को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि क्या घर में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। इस तरह की घटनाएं अक्सर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण और ज्यादा घातक बन जाती हैं। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हम अपने घरों में पर्याप्त सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं। खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ उनके चार्जिंग सिस्टम की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। यदि वायरिंग, सर्किट या चार्जिंग उपकरण में जरा भी गड़बड़ी हो तो वह हादसे का कारण बन सकती है। इसके अलावा घरों में गैस सिलेंडर की सुरक्षित व्यवस्था और अग्निमिशन उपकरणों की उपलब्धता भी बेहद जरूरी है। अगर समय रहते आग पर काबू पाने में साधन मौजूद हों तो इस तरह की घटनाओं में जान माल का नुकसान कम हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com।
मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। शहर के पौष इलाके ब्रिजेश्वरी एनेक्स में मंगलवार तड़के एक भीषण आग लग गई जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा इतना भयावह था कि परिवार के सदस्य अपने ही घर में फंसकर रह गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बच पाया। जानकारी की माने तो ये घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई जब अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। अचानक घर के निचले हिस्से में आग भड़क उठी और देखते ही देखते उसने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग मकान के सामने वाले हिस्से से शुरू हुई जहां एक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी। बताया जा रहा है ये मकान ब्रिजेश्वरी एनेक्स के निवासी मनोज पुगलिया का था। घटना के वक्त घर की तल मंजिल पर एक इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो रही थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। क्योंकि चार्जिंग के दौरान बिजली का लोड अधिक होता है इसलिए आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया। आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी और फिर धीरे धीरे पूरे घर में धुआं और लपटें फैलने लगी। घर के ज्यादातर सदस्य उस समय ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। जैसे ही आग और धुआं ऊपर उठा परिवार के लोग घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन नीचे जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद था जिस कारण वे आग की चपेट में आ गए। धुएं की घुटन और तेज लपटों के कारण वे नीचे नहीं आ सके और वहीं फंस गए। स्थिति इतनी भयावह थी कि किसी को भी अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिला। इसी बीच घर में रखा गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गया। कुछ ही देर में सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ।